everyone, welcome to my channel, welcome to DPT World Teaching. So in this video, we'll be doing the muscle attachment of pubis. Pubis is the part of the hip bone that forms the anterior-inferior portion of the hip bone. So सबसे पहले हम pubis के pubic tubercle की बात करेंगे. हमें पता है हमारे pubis की एक बॉडी होती है जिसको बोलते हैं बॉडी ऑफ pubis. उस बॉडी ऑफ pubis पे हमारे पास उसके लेटरल एंड पे बेसिकली हमारे पास एक ट्यूबरकल मौजूद होता है जिसको बोलते हैं pubic tubercle. अब इस pubic tubercle पे हमारे पास सबसे पहले हमारे इंग्वानल लिगामेंट की मीडियल एंड की अटैचमेंट होती है. उसके साथ साथ हमारा जो क्रिमेस्टर मसल है उसके असेंडिंग लूप्स की ओरिजिन होती है. So in short, the pubic tubercle gives attachment to the medial end of the inguinal ligament and it also gives origin to the ascending loops of the cremaster muscle. एक बात याद रखें कि हमारा जो inguinal ligament है इसके lateral end की attachment कहाँ हो रही थी? हमारे ईशियम के anterior superior iliac spine पे, और medial end की जो attachment है वो इधर हो रही है pubic tubercle पे. So an easy way to learn the muscle attachment on the pubic tubercle is this mnemonic, which is ICE. ICE word याद रखें, आपको pubic tubercle की attachment याद रहेगी. So I stands for the medial end of inguinal ligament. यानी I stands for inguinal ligament. बस आपको इतना याद रखना कि inguinal ligament का कौन सा end, medial और lateral. So हमें याद रखना चाहिए कि हमारे pubic tubercle पे inguinal ligament के medial end की attachment है. Along with that, CE stands for cremaster muscle. And remember कि cremaster muscle के ascending loops की origin. Okay, then comes the pubic crest. Remember हमारे body of pubis पे कुछ borders थे. So एक border था superior border. So superior border was also known as or is also known as the pubic crest. अब pubic crest के हमारे पास दो parts होते हैं. एक होता है हमारा medial part, एक होता है lateral part. So let's just discuss the muscle attachment on both the parts of the pubic crest. Okay, medial part is crossed by the medial head of the rectus abdominis. हमारे पास एक मसल होता है जिसको बोलते हैं rectus abdominis. इसका medial head जो है उसकी attachment medial part पे होती है pubic crest के. इसी तरह lateral part पे हमारे पास rectus abdominis के lateral head की origin होगी. साथ ही साथ pyramidalis muscle की origin होगी. So in short, the medial part of the pubic crest gives origin to the medial head of the rectus abdominis, while the lateral part of the pubic crest gives origin to the lateral head of the rectus abdominis and pyramidalis muscle. An easy way to learn the attachments on the pubic crest is this mnemonic, which is RAP. So अगर RAP word आपके जहन में है, so there will be no difficulty in memorizing the attachments of the pubic crest. So R and A stands for rectus abdominis. Rectus abdominis के दोनों heads की बात हो रही है, medial and lateral. So हमारे pubic crest से लेटरल और मीडियल पार्ट्स की बात करें तो मीडियल एंड लेटरल हेड्स की ओरिजिन होती है. ठीक है, उसके बाद P स्टैंड्स फॉर पिरामिडालिस, उसकी ओरिजिन होगी प्यूबिक क्रेस्ट से. लेट्स जस्ट टॉक अबाउट द अटैचमेंट्स ऑन द एंटीरियर सरफेस ऑफ द बॉडी ऑफ प्यूबिस. अब बॉडी ऑफ प्यूबिस की जो एंटीरियर सरफेस है उस पर कुछ चीज़ों की अटैचमेंट होती है. सो लेट्स सी किस किस चीज़ की अटैचमेंट होती है. सबसे पहले हमारी बॉडी ऑफ प्यूबिस का एंटीरियर सरफेस गिव्स अटैचमेंट टू द एंटीरियर प्यूबिक लिगामेंट मीडियली. सो मीडियली एंटीरियर सरफेस एंटीरियर सरफेस पे मीडियली किसकी अटैचमेंट हो रही है? एंटीरियर प्यूबिक लिगामेंट की. देन इट ऑल्सो गिव्स ऑरिजिन टू द एडक्टर लॉन्गेस्ट मसल. सो एडक्टर लॉन्गेस्ट इज वन ऑफ द एडक्टर मसल्स जो कि एडक्शन में हेल्प करते हैं. तो इसकी ओरिजिन हो रही होती है हमारी बॉडी ऑफ प्यूबिस की एंटीरियर सरफेस से. देन इट ऑल्सो गिव्स ओरिजिन टू द ग्रेसिलिस मसल. ये भी इट्स वन ऑफ द मसल्स जो कि ओरिजिन लेता है हमारी बॉडी ऑफ प्यूबिस के एंटीरियर सरफेस से, नियर द मार्जिन ऑफ द प्यूबिक सिम्फाइसिस एंड ऑन टू द इंफीरियर रेमस. सो इसकी ओरिजिन कहाँ से हो रही होती है? प्यूबिक सिम्फाइसिस के मार्जिन के करीब, मतलब वहीं से ओरिजिन हो रही होती है और इंफीरियर रेमस के ऊपर से. देन हमारा एक और एडक्टर मसल है जिसकी ओरिजिन हो रही होती है. सो ग्रेसिलिस मसल जो है दिस वन, ग्रेसिलिस के बिल्कुल लेटरली हमारे पास एडक्टर ब्रेविस की ओरिजिन हो रही होती है. एंड एडक्टर ब्रेविस इज अनदर एडक्टर मसल which takes part in adduction, या which helps in adduction या adduction whatever. Then the last thing is the origin of the obturator externus along the margin of the obturator foramen. हमें पता है हमारा जो ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन है उसका जो मार्जिन है वहाँ से
origin होती है obturator externus muscle की, and it is present on the anterior surface of the body of pubis. So an easy way to learn the attachment on the anterior surface of the body of pubis is this mnemonic, which is GOA. So if you remember this word GOA, आपको हमारे बॉडी ऑफ प्यूबिस की एंटीरियर सरफेस की मसल अटैचमेंट नहीं भूलेगी. सो जी स्टैंड्स फॉर क्रेसलेस मसल, जिसकी ओरिजिन होती है एंटीरियर सरफेस से. ओ स्टैंड्स फॉर ऑब्ट्यूरेटर एक्सटर्नस, इसकी भी ओरिजिन होती है. ए स्टैंड्स फॉर एडक्टर लॉन्गिस, इसकी भी ओरिजिन होती है. ए स्टैंड्स फॉर एडक्टर ब्रेविस, इसकी भी ओरिजिन होती है. एंड अनदर ए स्टैंड्स फॉर एंटीरियर प्यूबिक लिगामेंट, इसकी अटैचमेंट होती है. सबकी अटैचमेंट होती है हमारी एंटीरियर सरफेस ऑफ प्यूबिक से, या सिंपली इन सब की ओरिजिन और इसकी अटैचमेंट होती है हमारी एंटीरियर सरफेस ऑफ द बॉडी ऑफ प्यूबिस पे. नाउ लेट्स डिस्कस द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द बॉडी ऑफ प्यूबिस. सो इस पे सबसे पहले हमारे पास जो मसल्स आते हैं वो होते हैं लिवेटर एनाई. सो पोस्टीरियर सरफेस गिव्स ओरिजिन टू द लिवेटर एनाई इन इट्स मीडियल पार्ट. यानी बॉडी ऑफ प्यूबिस की जो पोस्टीरियर सरफेस है उसके मीडियल पार्ट पे, मिडल पार्ट पे किसकी ओरिजिन हो रही होती है? लिवेटर एनाई मसल्स की. देन इट ऑल्सो गिव्स, यानी पोस्टीरियर सरफेस ऑल्सो गिव्स ओरिजिन टू द ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस मसल लेटरली. पोस्टीरियर सरफेस के लेटरली ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस की ओरिजिन हो रही होती है. इट ऑल्सो गिव्स अटैचमेंट टू प्यूबो प्रोस्टैटिक लिगामेंट मीडियल टू द ओरिजिन ऑफ द लिवेटर एनाई. ये जो मसल है लिवेटर एनाई, इसके मीडियली अगर चले जाएं तो हमारे पास एक लिगामेंट की अटैचमेंट हो रही होती है, उसको बोलते हैं प्यूबो प्रोस्टैटिक लिगामेंट. या प्यूबो प्रोस्टैटिक लिगामेंट का अनदर नेम क्या है? प्यूबो वेसिकल लिगामेंट. सो एन ईजी वे टू लर्न द अटैचमेंट्स ऑन द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द बॉडी ऑफ प्यूबिस इज दिस mnemonic, which is POL. So if you remember this mnemonic, you'll not forget the muscle attachment on the posterior surface of the body of pubis. So P stands for puboprostatic or pubovesical ligament. O stands for obturator internus. L stands for levator ani. Levator ani के anterior fibers. इन दोनों muscles की origin हो रही है. So let's just discuss the last thing of pubis, which is pectineal line. इस पे attachment की बात करते हैं. So pectineal line हमें पता है क्या है. हमारे प्यूबिक के पास दो रेमस होते हैं, दो रेमाए होते हैं. एक होता है सुपीरियर रेमस, एक होता है इन्फीरियर रेमस. सुपीरियर रेमस के सुपीरियर बॉर्डर को हम लोग पेक्टिनियल लाइन बोलते हैं. ओके, सो पेक्टिनियल लाइन गिव्स ओरिजिन टू द पेक्टिनियस मसल अलोंग इट्स इंटायर लेंथ. क्या कह रहे हैं कि जो पेक्टिनियल लाइन है उसकी पूरी लेंथ पे से एक मसल ओरिजिनेट हो रहा होता है जिसको बोलते हैं पेक्टिनियस मसल. एंड इट ऑल्सो गिव्स इंसर्शन टू स्वास माइनर. सो एक मसल आके इंसर्ट होता है हमारी पेक्टिनियल लाइन पे जिसको बोलते हैं स्वास माइनर. So an easy way to learn the muscle attachment on the pectineal line is this mnemonic, which is CLAP. So if you learn it, you'll not forget the muscle attachment on the pectineal line. So इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, but two most important things are एक पेक्टिनियस मसल है जिसकी ओरिजिन होती है और एक स्वास माइनर है जिसकी इंसर्शन होती है. ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है, बाकी सब भी याद रख लें तो देयर इज नथिंग बैड इन इट, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो दो चीज़ें हैं. ओके, सो द फर्स्ट थिंग इज सी. C stands for the conjoint tendon. Then we have L and A. LA stands for lacunar ligament. Then we have P. P stands for pectineus muscle, जिसकी origin होती है हमारे pectineal line की entire length से. Then we have another P, which stands for pectineal ligament of Cooper. And the last P stands for psoas minor, जिसकी insertion होती है हमारी pectineal line पे. So this is all about the muscle attachment on the pubis. Thank you so much for watching my video. Hope you all understood it. Hope you all liked it. Please give it a thumbs up, share, subscribe, and do whatever you can do to support my channel and my videos. If you find any difficulty in learning all the concepts, please let me know in the comments down below. Thank you.